ਕੁਦਰਤ ਕਿਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿਰਬਾਨ ਹੈ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਰਖਾਬ ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੂਪਾਂ ਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁੱਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁੱਸਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਾੜ ਖਿਸਕ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਨਦੀਆਂ ਉਫਾਨ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਬਣ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸਾਮ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਤੂਫਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਠੇ ਕਿ ਲੋਕ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਕੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ 1 ਜਾਂ 1.5 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਭੂ ਸਕਲਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਖਿਸਕਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮੌਸਮ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਵੇਂ 40 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਨ ਨੇ ਜੋ ਪਿਘਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਯੂਕੇ, ਸਪੇਨ, ਹੰਗਰੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 40 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੋ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਨਸੂਨ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਬਰਸਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਖਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਇਸ ਕਦਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ 2 ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਸੂਖਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁੰਦਰਮ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਜਾਂ 1.5 ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਰਸਾਤ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ करके आ रही है? देखिए सर, जो एल नीनो का आपने जिक्र किया वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है, उसमें कोई शक नहीं है। उसके साथ में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया का जो तापमान है उसको बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। और जो गर्मी बढ़ रही है इसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों के न केवल मारे जाने की संभावना है बल्कि उससे ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। एक अपना जो घर बार, जमीनें, जायदाद, पुश्तैनी गांव और शहर भी छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, जिनको क्लाइमेट रेफ्यूजी कहते हैं। और कई सारे देशों में ये अभी देखने को इस तरीके के इम्पैक्ट मिल रहे हैं जी। आपने जो कहा कि बारिश का जो कहर है वो हर साल होता है, हर साल हम अंडरमाइन करते हैं और वो बहुत बढ़ जाता है। तो बारिश का पैटर्न अगर आप देखेंगे, जो पहले लगभग 60 दिन में जितनी बारिश होती थी वो उतनी बारिश 60 घंटे में हो जाती है आजकल। ठीक है। और उसके बाद में लंबा सूखा पड़ता है। पहाड़ों के ऊपर हमने जिस तरीके से कटान किया है, सड़कें बनाई है, घर बिल्डिंग बनाई है, वो बहुत ही बेतरतीब है। उसमें पूरी तरह नॉन साइंटिफिक तरीके से हमने पहाड़ों को काटा है।
प्रकृति का इस कदर विनाश किया है कि प्रकृति एक झटके में ये सारी चीजें रिसेट कर सकती है, और उस दौरान हमारे लाखों करोड़ों लोगों की जान जा सकती है, बाढ़ आ सकता है, तूफान आ सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन प्रकृति को अगर हम थोड़ा भी नॉन साइंटिफिक तरीके से छेड़ेंगे तो वो अपने आप को रिसेट बटन दबाएगी, तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा। तो इसलिए सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अभी सुधरने का समय बहुत नामात्र का है, हमारे पास जा चुका है सुधरने का समय। ठीक है, लेकिन फिर भी हम जो मानव त्रुटियां उनको सुधार सकते हैं। ठीक है चौधरी ਸਾਹਿਬ, मैं तिवाड़ी जी को जाना चाहांगा। चौधरी जी कहते ਨੇ कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ, ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ तिवाड़ी साहब। जी, मैं विकास की अगर बात करें तो विकास केवल किसी व्यक्ति को जंगल काट के और पहाड़ों को काट के ही विकास नहीं करना है। अगर हम बात करें, जैसे अभी चौधरी साहब बता रहे थे, लोग विस्थापित हो रहे हैं। आप अगर छत्तीसगढ़ और झारखंड जो एरिया में आप जाएंगे, जहां पर माइनिंग होती है, उनके आसपास गांव की स्थिति है, वो स्थिति बहुत चिंताजनक है। लोगों को कैंसर हो रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं। ये केवल एक राज्य की बात नहीं है, ये पलायन जो है वो विभिन्न प्रकार हो रहा है। हीट की वजह से हो रहा है, फैक्ट्रियों की वजह से हो रहा है, गंदे पानी की वजह से हो रहा है। केवल आप जब देखते हैं, आज जैसे आपने बताया कि पहले 60 दिन में जो बारिश होती थी वो 60 घंटे में हो रही है। उसका क्या है, जो पैटर्न चेंज हो रहा है बारिश का। और हमारे पास जो तालाब होते थे और पोंड होते थे, जहाँ पे बारिश का पानी धीरे धीरे एकत्रित होता था, हम लोगों ने उस पर कब्जा करके उस पर फ्लैट और बिल्डिंग बना दी हैं। आप देखते हैं, एक बात आप देखते हैं कि शहर जो है वो पूरी तरह जो है जलमग्न हो जाता। कारण क्या है कि वहाँ पे जो ढलान रहती है, प्राकृतिक ढलान रहती है, और वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। तो वो पानी बहते बहते अपने प्राकृतिक स्थान पर जाने का प्रयास करता, जहाँ पहले कभी तालाब हुआ करता, जहाँ कभी झीलें हुआ करती थी। अगर आप देखें पूरे देश में तो झीलों पर बहुत सारे कब्जे हैं, वेटलैंड पे बहुत सारे कब्जे हैं, तालाबों पर कब्जा है। रोड कहाँ से बनाई जा रही है उसका कोई सर्वे नहीं होता है, कि बस एक रूट निकाल दिया, उसमें कई लाख पेड़ कटते हैं, और उसके नाम पर नाम मात्र के एक पेड़ की जगह 10 पेड़ लगाने का जो प्रयास होता है, उसका बाद में डाटा सामने नहीं आता कि जो 10 पेड़ लगाए वो बढ़े कितने। जो पेड़ 100 वर्ष का है उसको 100 वर्ष समय लगेगा बड़ा होने में। ये सब सोचना पड़ेगा कि हमें अंधा विकास चाहिए या अपना जीवन चाहिए आगे, ये हमें आज ही तय करना होगा। और मैं जो राजनीतिक पार्टियों से बार बार कहता हूं कि जो उनका मैनिफेस्टो बनता है, केवल एक आध पार्टियों को छोड़ के, एक लाइन के छोड़ के, जब तक मैनिफेस्टो में और चुनाव का मुद्दा पर्यावरण नहीं बनेगा, तब तक मुझे लगता है कि ऐसे पर्यावरण को नुकसान होता रहेगा, लोग तपते रहेंगे और लोग पलायन करते रहेंगे और लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे। तिवाड़ी साहब, फ्री बीच ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਦਰਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ एक पूरा साल असी कह दिए 11 महीने या 10 महीने खुश्क रहिंदे ने, बहुत घट पानी देखने को मिलता है, वो अचानक एक महीने दे विच उफान दे उपर किवें आ जांदे ने? चौधरी जी, तुहाडा माइक शायद म्यूट हो गया, कृपा करके अनम्यूट कर लियो। विकास की जो अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो विकास किसके लिए हो रहा है ये हमें समझना पड़ेगा। विकास ये आम लोगों के लिए तो नहीं हो रहा है, ये कुछ खास मुट्ठी भर लोगों के लिए विकास हो रहा है, कुछ कॉरपोरेट के लिए हो रहा है, और कुछ सरकारों, सरकारी ऑफिसर्स के लिए या नेताओं के लिए हो रहा है। इसकी वजह से दिक्कत क्या हो रही है कि आम लोगों की बलि के ऊपर और उनके नाम पे किए गए विकास के ऊपर जो असली फायदा उठाते हैं वो कॉरपोरेट उठाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि पूरे शहरों को पक्का कर दिया, और खेती की इतनी घटिया टेक्नोलॉजी हमें दे दी कि बार बार यूरिया, डीएपी, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, जहर, रोटावेटर, ट्रैक्टर चला के आप जमीनों को पका दो जी। तो एक तरफ तो शहर पक्के कर दिए, दूसरी तरफ खेतों की जमीन पक्की कर दी, जहां पे पानी सीपेज होके जमीन में जाना बंद हो गया है। आप पंजाब की बात करें तो 2039 तक पंजाब डेजर्ट स्टेट की कैटेगरी में आ जाएगा। कारण क्या है कि हमने जमीनों को पका दिया, शहरों को पका दिया, अब ग्राउंड वाटर नीचे सीपेज नहीं हो रहा है, और सारा का सारा वो पानी बह के
अच्छी मिट्टी को लेके नदी नालों और समुद्र में निकल जाता है। तो उससे बाढ़ भी आएगी, तबाही भी आएगी, भुखमरी भी आएगी, जमीनें भी बर्बाद होंगी, ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है। उसके लिए हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी रिपोर्ट उसमें बहुत सारी हैं जो इंडिकेट कर रही हैं कि 2039 तक पंजाब डेजर्ट स्टेट की कैटेगरी में आ जाएगा, राजस्थान से भी बुरा हाल हो जाएगा, जबकि राजस्थान एक ग्रीन स्टेट की कैटेगरी में जाता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है। तो कुल मिला के क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग आम लोगों के लिए नहीं तो एक तरीके से फायदा नहीं पहुंचा रहा है। खास लोगों की जो डेवलपमेंट की भूख है और जो लूट है डेवलपमेंट के नाम पे, तो वो झेलते हैं आम लोग, और जो हमें अभी दिख रहा है तबाही के रूप में। ठीक है तिवाड़ी साहब, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈਆਂ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਉੱਡਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਨਸੂਨ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸਾਮ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮਾਨਸੂਨ ਇਸ ਵਕਤ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1-1.5 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਇਆ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। जैसे आपने बताया कि अगर विकास में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश, बिहार और नॉर्थ ईस्ट की आप बात कर रहे हैं, अभी क्या है, केवल जो चर्चा होती है इन्वेस्टर समिट कि कितनी ज़्यादा कंपनियां कितनी ज़्यादा रोड बना रहे हैं, हम इस पर केवल चर्चा करते हैं। अगर आप केवल पहाड़ों को काट के उनको टूरिज्म के रूप में डेवलप करेंगे, जो पक्की जो कच्चे स्थान है उनको पक्का करके उनको टूरिज्म डेवलप करेंगे, तो इस तरह से जो बहुत सारे अनियंत्रित विकास हो रहा है, जिसको कहा जाए कि अनप्लान्ड विकास हो रहा है, कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए राहत पहुंचाने के लिए कहा जाए जो विकास हो रहा है, उसको जो कष्ट है वो सभी को देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में आज और कल में थोड़ी बहुत बारिश हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी मैंने भी आज तक नहीं देखी। इतनी ज़्यादा गर्मी स्थिति ये है कि मतलब उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगर ऐसे ही रहा तो 2-4 साल में मुझे लगता है लोग पलायन करेंगे, और सरकार जो नीतियां लाती है उनको ग्राउंड पे कहीं देखने को मिलता नहीं है। हर जगह प्लास्टिक बैन है, लेकिन आप पूरे भारत में कहीं भी चला जाइए, आपको कहीं ऐसी कोई स्थान नहीं मिलेगा जहां प्लास्टिक ना मिले। तो केवल नीतियां बनाने से नहीं होगा, उनको इम्प्लीमेंट करने से होगा। आप किसी भी धार्मिक स्थान पे चले जाइए, वहां के तालाबों की स्थिति क्या है, वहां तालाब नहीं दिखता, वहां पर केवल प्लास्टिक और कूड़ा कचरा यही सब दिखता है। तो केवल सरकार का काम नहीं है, समाज को साथ मिलके सरकार को जागृत करना होगा। जैसे मैंने बताया चुनाव की बात, क्योंकि पेड़, नदियां और हमारे पहाड़ वोट नहीं देते और बोल नहीं पाते, तो उनके लिए बोलने भर के कुल गिने चुने देश में 100, 200, 500, 1000 लोग होंगे और उनके वाला कोई नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप यूरोप में आप बता ही रहे थे क्या स्थितियां हैं वहां पे, लेकिन वहां सरकार भी सजग है। हमारे यहाँ पे क्या है, एनजीटी में कौन है, वही जज हैं जो एसी के कमरे में बैठ कर डिसीजन लेते हैं। मंत्री कौन है, जिसको पर्यावरण के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसको मंत्री बना दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा दुखद है। जब तक जो पॉलिसी मेकर सही, जिनके अंदर भावनाएं नहीं होंगी, पॉलिसी मेकर ਦਾ ਪਤਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਸਾਤ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਰਸਾਤ ਦਰਮਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਸਾਮ ਔਰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਹੋਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਆ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ है? देखिए, सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। और ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज क्या करता है कि जहां पे बहुत बारिश होती थी वहां पे बहुत कम होनी चालू हो जाएगी। जैसे चिरापुंजी में बहुत बारिश होती थी, अभी बहुत कम हो रही है। शायद वो 7वें, 8वें या 10वें नंबर पे आ गया बारिश के मामले में, जो पहले 1 नंबर पे था। इसके अलावा राजस्थान को अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में बारिश बहुत कम होती थी, वहां पे अभी काफी ज्यादा होनी चालू हो गई है। कुछ जो टेक्नोलॉजीज है उनका इस्तेमाल करके भी बादलों को छेड़खानी की गई है, मौसम क्लाइमेट के साथ में छेड़खानी की गई है। वो भी बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट लेके आने वाला है। चाहे वो 1 साल में ना आए, लेकिन 2, 4, 5 साल में आप देखेंगे कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो इस कदर बदलेंगी, क्योंकि जो टेम्परेचर में 0.5% का भी वेरिएशन आता है वो ग्राउंड पे कई सैकड़ों % में तब्दील हो जाता है।
उसका मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे खेती हमारा है जी थोड़ी सी टेम्परेचर बढ़ने के बाद में कम से कम 20 से 40% फसल का उत्पादन गिर जाता है। अगर सर्दी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई तो फिर भी उत्पादन गिर जाता है। तो अभी क्या हो रहा है कि जो मौसम के विंडोज थे, जैसे सर्दी 4 महीने की 3 महीने की होती थी, वो श्रिंक होके 1 महीने में आ गई है। जो बारिश का मौसम 6 महीने या 4 महीने कहीं पे चलना था, तो वो श्रिंक होके 1 महीने 15 दिन पे आ गया है। तो जब इंटेंसिटी बढ़ गई है और ड्यूरेशन कम हो गया है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अचानक से मौसम में आई तब्दीली को आम इंसान झेल नहीं पाता है। और जो सरकारें हैं उन्होंने चेंज कॉर्पोरेट और सरकारों ने कि उनके लिए तो लगभग ठीक है, लेकिन आम इंसान के लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन हो पर रही है। चौधरी उसमें ਸਾਹਿਬ भुखमरी भी ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ होगी, ਸਵਾਲ पलायन ਇਹ भी होगा। ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗਰਮੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿੱਘੀਆਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ रेत वाले तूफान ने वो बहुत वध गए ने, तो सिर्फ गर्मी ही क्यों वध रही है? देखिए, गर्मी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। डीजल पेट्रोल एक बार थोड़ा बंद होने की बात ही हुई थी कि सब लोगों को पसीने आ गए हैं। इसके बाद कोयला बेहद ज्यादा हम जला रहे हैं, जो इंसान जैसे अभी कुछ दिन को काट देंगे और दिल्ली तक जो अरावली को है वो हटा देंगे, तो उसके भी बेहद ज्यादा नुकसान हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि माइनिंग बहुत बड़े लेवल पे हो रही है और बहुत किस्म की माइनिंग हो रही है। तो जो CO2 गैस रिलीज हो रही है, मीथेन गैस रिलीज हो रही है हवा में, वो बहुत बड़ा और तेजी से ऐसे इम्पैक्ट लेके आएगी कि अचानक से लाखों लोगों के मरने की संभावना हो जाएगी। आपको यूरोप का मैं बता देता हूँ 2 शब्दों में। 2.5 से 3 लाख बुजुर्ग लोग मर चुके हैं इसी पिछले 2-3 हफ्ते के हीट वेव्स में। ठीक है। और वहां पे रोड पिघल रहे हैं, ट्रैम नहीं चल रही है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो रहा है। ठीक है, मैं तिवाड़ी जी को जाना चाहांगा। तिवाड़ी जी, बहुत वड्डी तरक्की कर ली, AI ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ITI ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ AI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਬੱਦਲ ਜੋ ਫਟਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਸਿਰਫ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ? देखिए, AI आना या चीज़ें आना ये तो ठीक है, लेकिन अगर पर्यावरण, तो पेड़ लगाने से ही ऑक्सीजन मिलेगा ना, AI तो ऑक्सीजन देगा नहीं। अगर पानी को रोकना तो उसके लिए तालाब चाहिए। तो ये चीज़ें ग्राउंड, जो मैं अभी पहले ही कह रहा था कि जो चीज़ें हम पॉलिसी बना रहे हैं विभिन्न प्रकार की, उस पर ग्राउंड पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जो लोग लैब में काम कर रहे हैं उनको ग्राउंड की नॉलेज नहीं है, वो लोग लैब में बैठ के काम कर रहे हैं। जो लोग नीति बना रहे हैं वो कहाँ बना रहे हैं? जो 5 स्टार होटलों में बैठ के उन पे क्लाइमेट पे चर्चा हो रही है, अवार्ड लेने देने का एक प्रक्रिया चल रहा है। जब तक ग्राउंड पे चीज़ें नहीं होंगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, तब तक लगातार ऐसे क्लाइमेट चेंज होता रहेगा। अभी अपने यहाँ पे चलने वाला एक पेड़ माँ के नाम, तो कई बार आपको देखने को मिला, आप लोग ही रिपोर्ट दिखाते हैं कि उसमें पन्नी भी नहीं खोली जाती, केवल पेड़ ले जाके रख दिया जाता है। तो ऐसे क्लाइमेट चेंज को हम नहीं रोक पाएंगे, केवल कागजी कोरम पूरा हो रहा है, ग्राउंड पे चीज़ें नहीं हो रही। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये स्थिति ऐसे ही रही तो आने वाले 5-10 साल में जो आप यूरोप की स्थिति हो गई है, कई लाख लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, कई लाख लोग विस्थापित हो रहे हैं, भारत में भी हो रहे हैं लोग विस्थापित। लेकिन आप पहाड़ों पे देखिए, लोग विस्थापित हो रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों के जो जंगल जो कट रहे हैं, अनियमितता कट रही है, तो पहाड़ ढीले होते जा रहे हैं। जो उन पे जो एक अच्छा नेचुरल कहें जाए, नेचुरल उसमें फेंसिंग है, वो खत्म हो रही है, तो पहाड़ अपने आप ही दरक के नीचे गिर जा रहे हैं। तो काम है ग्राउंड पे करने की आवश्यकता, और नीति को ग्राउंड पे और इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम क्लाइमेट चेंज से बच सकें। और एक जी ठीक है, मैं चौधरी साहब को जाना चाहांगा। चौधरी साहब, तकनीकां विकसित होने के बावजूद भी ਅਸੀਂ अनुमान ला रहे हैं, मेरा सवाल वही है, पर ठीक है क्लाइमेट चेंज है या बहुत वड्डियां चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਸਕੀਏ।
देखिए, एक जैसे आपने कहा कि सदियां लगेंगी, ऐसा नहीं है। हम 1-2 साल में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे ठीक। तिवारी जी ने कहा कि ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा है। अगर ग्राउंड पे काम हो और युद्ध स्तर पे काम हो, हमारे आर्मी, पुलिस और बाकी तमाम सारे जो सेनाएं और बाकी एनसीसी वगैरह के जो जवान हैं, उनको एक साथ में लेके एक टास्क फोर्स बनाई जाए तो बहुत तेजी से बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। उसमें यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट्स को साथ में लिया जा सकता है, जैसे चाइना ने लिया। आपको जान के हैरानी होगी कि उन्होंने करोड़ों हेक्टेयर को ग्रीन बना दिया कुछ ही सालों के अंदर अंदर। तो हम भी ये सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम ये बोलते हैं कि इसमें बहुत समय लगेगा, तो हम एक तरीके से अपना ब्लेम गेम आगे सरका रहे हैं, उससे फायदा नहीं होने वाला है। दूसरा, सरकारों को जागना पड़ेगा। वो खुद तो लोगों को भाषण दे सकते हैं कि भाई आप हवाई जहाज में ना उड़े, ये ना करें, वो ना करें, लेकिन खुद का उनका जो चार्टर्ड प्लेन चलते रहते हैं नेताओं के, फिल्म स्टार के, हीरो हीरोइन के, अब देखेंगे कि बेजा इस्तेमाल हो रहा है उनके, जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं उसमें। तीसरा, आपने जो कहा कि जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग है, कि इससे बचने के लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं, तो जी। बिल्कुल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमारे पास बहुत सारे प्लान हैं। क्लाइमेट मिटिगेशन प्लान है, एग्रीकल्चर में है, हेल्थ में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, अर्बन प्लानिंग में है, रोड कंस्ट्रक्शंस में है। बहुत सारी चीजें हमारे पास ऑलरेडी हैं जिसपे रिसर्च पूरी तरह डन है, ग्राउंड पे जिनका काम हो चुका है। लेकिन विल पावर हमारे नेताओं की, ब्यूरोक्रेट्स की और आम जनताओं ठीक। की तभी आ पाएगी जब हम इसको एक जनता का मुद्दा बनाएंगे। ठीक है चौधरी साहब, तिवाड़ी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तुसीं चर्चा का हिस्सा बने। ਤਾਂ ਸਾਰੀ जो मसले की जड़ है वो इच्छा शक्ति है। जेकर इच्छा शक्ति होगी तो इस वातावरण की तब्दीली नूं रोकिया जा सकता है, इसनूं सुधारिया जा सकता है। पर लोड़ है इच्छा शक्ति की, सिर्फ उस सिस्टम की इच्छा शक्ति नहीं, सगों हर एक नागरिक नूं एकजुट होना पवेगा। तो एकजुट होकर ही असीं अपनियां आउण वालियां पीढ़ियां नूं बचा सकते हैं। फिलहाल इस पेशकश दे विच इन्ना ही। मैनूं दिओ इजाजत। देखते रहो रोजाना स्पोक्समैन टीवी।